students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So student, before starting this session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to start our very first chapter of English grammar. So the title of the chapter is Sentences. So learning objectives of this chapter are the student will be able to explain what a sentence is, learn how to make sentences, discuss the elements of a sentence and understand the concept of phrases. So sentence के बारे में हम अपनी previous classes में बात कर चुके हैं. Sentences को कैसे form किया जाता है, क्या होता है, कितने इसके parts होते हैं और इसके जो concept होता है phrases का, जो सेंटेंस का एक पार्ट माना जाता है, क्या होते हैं, इनको भी हम डिटेल में समझेंगे. Read the following sentences. Is my current name you my our best friend or friend best possess he talent too much. The given group of words do not make any sense. कोई सेंस हमें नहीं दे रहे. ये बस ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप इन्हें कह सकते हो, इन्हें आप सेंटेंस नहीं कह सकते. Therefore, they cannot be called a sentence. इसलिए इनको सेंटेंस नहीं कहा जाएगा. If we arrange them in a proper order, they will be read as. अब इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर हम करेक्ट ऑर्डर में लगाएं तो वो सेंटेंस कहलाएंगे. कैसे? My name is Karan. ठीक है, अब आपको पता चल रहा है, पहले नहीं पता चल रहा था. You are my best friend. He possesses too much talent. Now these group of words make complete sense. So they are called sentences. बहुत सिंपल है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना ज़रूरी नहीं है, उनका करेक्ट ऑर्डर में लगा होना ज़रूरी है, सो दैट वो आपको एक कंप्लीट मीनिंग जो है प्रोवाइड कर सके. A group of words arranged in proper order to make complete sense is called a sentence. Now always keep in mind a full stop, a question mark or an exclamation mark must be put at the end of a sentence. एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं. राज हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 10 minutes. इसमें आपने नोटिस किया जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट वर्ड है, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, एंड होगा फुल स्टॉप से या फिर क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से. जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. हाउ आर यू डूइंग दीज डेज, ये क्वेश्चन सेंटेंस है. इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड. Did the Pandavas defeat the Kauravas? महात्मा गांधी is known as the father of the nation. तो अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा दिया, सो दैट आप इस बात को फ्यूचर में ध्यान में रखेंगे. The words must be written in a systematic way so that they convey proper meanings and make sense. Examples, there is a glass of water on the table. I will leave for Chennai tomorrow. The above sentences convey complete sense and as such they are meaningful sentences. So जो words होते हैं ये भी मैंने पहले आपको बताया एक systematic order में लगे हुए होने चाहिए और एक meaning आपको convey करते हुए होने हुए चाहिए. अब हम बात करते हैं द फ्रेजेस की. फ्रेजेस क्या होते हैं? एग्जामिन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. हाउ टू डू इट, ऑफ ग्रेट वेल्थ, अलोंग द बीच, इन द कॉर्नर. ईच ऑफ द अबव मेंशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव्स only a vague indication but does not make complete sense. They convey only an incomplete idea of a place, a manner or time. ठीक है, यहाँ पे हमें ये समझ में तो आ रहे हैं लेकिन कंप्लीट सेंस ये हमें नहीं दे रहे, क्योंकि ना ही ये हमें किसी प्लेस के बारे में बता रहे हैं, मैनर के बारे में बता रहे हैं और टाइम के बारे में बता रहे हैं. Therefore, they require something else to make complete sense. तभी ये सेंटेंस कहलाएंगे, अदरवाइज ये क्या कहलाते हैं? आपके फ्रेजेस कहलाते हैं. Such group of words which make some indication but do not make complete sense are called phrases. अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे. Rearrange the following group of words to form meaningful sentences in the space provided. Also use capital letters and punctuation marks wherever they are necessary. Ram and Lakshman.
each other very much loved. So आप यहाँ पे इन्हें कंप्लीट करके लिखेंगे करेक्ट ऑर्डर में. राम एंड लक्ष्मण love each other very much. There are 20 students in the class. There are 20 students in the class. On the table lying the pens are. The pens are lying on the table. Are beautiful the flowers. तो हम लिखेंगे the flowers are beautiful. Does homework her she properly. She does her homework properly. Write P for phrase and S for sentence against each group of words. Use proper punctuation marks, full stop and capital letters wherever they are necessary. Our football team played very well. So आपको बताना है कि ये phrase है या फिर sentence है. तो यहाँ पे आपको clear meaning दे रहा है, that means ये sentence है. अब आप इसको correct वे में लिखेंगे, यानी कि आपको कैपिटल फॉर्म में लिखना है फर्स्ट लेटर को और लास्ट में आपको एंड करना है फुल स्टॉप से. इन द पार्क जो है ये आपका फ्रेज है. माई मदर इज कुकिंग. कुकिंग व्हाट, तो ये भी आपका फ्रेज है. ही ट्राइड. ऑल्दो इसमें आपका वर्ब आ रहा है तो आप इसको सेंटेंस कह सकते हैं. फ्रेजेस में जनरली वर्ब नहीं आता. ही ट्राइड हिज बेस्ट. ठीक है, ये भी आपका सेंटेंस है. ऑन द वे ये आपका फ्रेज है. Rewrite the following sentences in a proper format with the correct use of capital letters and punctuation marks. बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इन्हीं सेंटेंस को एज इट इज लिखना है, लेकिन फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा एंड आप एंड करेंगे किससे? फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से. मतलब जहाँ जहाँ आपको लगता है पंक्चुएशन मार्क लगाने चाहिए आप वहाँ पे लगाएंगे. जैसे कि आई डू नॉट लाइक टू ईट कीवी. आई कैपिटल आएगा, कीवी के बाद फुल स्टॉप आएगा क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है बताई जा रही है. कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ संस्कृत. सो के जो है कैपिटल आएगा, एंड में फुल स्टॉप आएगा क्योंकि ये भी आपसे बात कही जा रही है. सिंपल स्टेटमेंट है. वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. अगेन वी का डब्ल्यू आपका कैपिटल आएगा, एंड करेंगे फुल स्टॉप से. द अर्थ लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, इसी तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे और लिखेंगे. Now an activity is given here. Recently, Indian Space Research Organization ISRO successfully launched and landed Chandrayaan-3 on the southern part of the moon. The mission has created much applause worldwide. Search the internet and write a few sentences explaining some of the mission's facts. Also, paste a picture of Chandrayaan-3 in the space provided. सो हाल ही में चंद्रयान जो है उसको लॉन्च किया गया था. चंद्रयान-3 इस मिशन का नाम था जो कि मून के साउथर्न पार्ट में लैंड किया था. ठीक है, इन्फॉर्मेशन और आपको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. आप अपने बड़े की या किसी टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं और कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने हैं. So student, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.